my channel Grow Eva. I am Mohita Chugh, your educator. I hope you all are doing well and having a great day. In this video, we will study about the basic concepts of the bioprocess engineering. We will start with the section 4 of GATE. In the previous video, we have studied about the overview of the bioprocess engineering, in which we have discussed about the upstream processing followed by the fermentation, and in the end we have discussed about the downstream processing. If you haven't seen that video, then it is very important to see that video, because in that video we have first discussed about what is bioprocess engineering and the importance of this subject in the GATE exam. In this video, we will first discuss about the thermodynamics. What is thermodynamics? Thermodynamics is a branch of science that deals with the properties of matter. इसके principles हमारे material balances के अंदर use होते हैं. The basic concept of the thermodynamics depends upon the system and surroundings. अब system और surrounding होता क्या है? System is anything which is enclosed within the boundary. जो boundary के अंदर है उसे हम system बोलते हैं, जो boundary के बाहर है उसे हम surroundings बोलते हैं. Now let's take an example. If this is a bioreactor, reaction occurring inside the bioreactor will act as a system. In that case, the walls of the bioreactor will act as a boundary and the whole external environment will be considered to be as surroundings. Surroundings and system मिलके universe बनाते हैं. Thermodynamic systems are of two types, open and the closed systems. This picture represents the transfer of heat within both the systems. Systems, that is open and the closed systems, are divided on the basis of the mass transfer. अगर हमारा inflow as well as outflow of the mass हो रहा है उसे हम बोलते हैं open system, and अगर हमारा mass transfer नहीं हो रहा है then it is known as the closed system. Let's take an example of a house जिसके अंदर हमारा मास का या फिर लोगों का इनफ्लो एंड आउटफ्लो बहुत ज़्यादा है, बार बार हो रहा है, देन हमें उसका गेट ओपन रखना पड़ेगा. दैट इज़ वाई दिस सिस्टम इज़ नोन एज द ओपन सिस्टम. एंड ऑन द अदर साइड अगर हम दूसरा एग्जाम्पल ले जहाँ पे लोगों का इतना आना जाना नहीं है या फिर इनफ्लो एंड आउटफ्लो इतना ज़्यादा नहीं है मास का, तो हम अपना गेट उस केस के अंदर क्लोज रख सकते हैं. दैट इज द रीजन दिस सिस्टम इज नोन एज द क्लोज सिस्टम. Bioprocesses are of four types, that is batch process, semi-batch process, fed batch process and continuous process. Let's first talk about the batch process. Batch process is a process where there is an inflow of the media as well as the biomass and then हम reaction होने देते हैं. एंड में जब हमारा रिएक्शन खत्म हो जाता है, जब हमारा प्रोसेस एंड हो जाता है, देन वी रिमूव आवर प्रोडक्ट फ्रॉम इट. ऑन द अदर हैंड, इन द कॉन्टिन्यूअस रिएक्शन, एज द नेम सजेस्ट, continuous inflow of the media as well as the biomass occurs at a constant interval and इन्हीं constant interval पर ही हमारा प्रोडक्ट को हम बार बार रिमूव करवाते हैं बायोरिएक्टर में से. इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही आधा बैच एंड आधा कॉन्टिन्यूअस हमारा थर्ड सिस्टम बनाता है, दैट इज सेमी बैच प्रोसेस. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दिस सेमी बैच प्रोसेस फर्स्ट. Semi batch processes are of two types. The first one is the case where inflow of the media as well as the biomass is occurring at a constant interval and we are removing our product at the end. मतलब कि हमारा आधा वो बैच की तरह बिहेव कर रहा है एंड आधा वो कॉन्टिन्यूअस की तरह बिहेव कर रहा है. इनपुट कॉन्टिन्यूअस है एंड आउटपुट हमारा बैच की तरह बिहेव कर रहा है. दिस इज द केस जिस केस को हम फेड बैच भी बोलते हैं. On the other hand, when in the bioreactor हमने सिर्फ एक ही बारी अपना फीड ऐड करवा दिया स्टार्टिंग में, but we are removing the product at a constant intervals. Out of these all the process, the maximum productivity is generally observed in the continuous process. These topics will be individually discussed in detail in the later videos. Now we will discuss the applicability of the thermodynamic system in the bioprocess engineering. लेट्स फर्स्ट डिस्कस कैसे बैच रिएक्टर के ऊपर थर्मोडायनेमिक सिस्टम अप्लाई होता है. इन द बैच रिएक्टर हमने इनपुट जो है वो स्टार्टिंग में ऐड करा एंड रिएक्शन
होने दिया एंड आउटपुट जो है हमने एंड ऑफ द रिएक्शन में लगाया। हमने उसके बीच में उसकी लिड बिल्कुल भी ओपन नहीं करी। अगर हम इसे ऑब्जर्व करें तो बैच रिएक्टर हमारा क्लोज सिस्टम में आएगा, क्योंकि इसके अंदर हमने इनपुट एक ही बारी करवाया। देयर इज नो मास ट्रांसफर occurring between the reaction. Now I want all of you to pause this video and let me know how many of you are able to tell that इनमें से कौन सा सिस्टम ओपन है एंड कौन सा सिस्टम क्लोज है। Now let's discuss in the fed batch reactor हम continuously feed को ऐड करवा रहे हैं एंड अपना प्रोडक्ट एंड में रिमूव करवा रहे हैं। इट इज अ टाइप ऑफ अ सेमी ओपन सिस्टम, और या फिर हम इसे क्लोज सिस्टम भी बोलते हैं। एंड सेमी बैच के अंदर भी सेम केस होता है। एंड इन द कॉन्टिन्यूअस रिएक्टर वी आर एडिंग अ फीड कॉन्टिन्यूअसली एट अ कॉन्स्टेंट इंटरवल एंड वी आर रिमूविंग द प्रोडक्ट कॉन्टिन्यूअसली एट अ कॉन्स्टेंट टाइम पीरियड। देन हमें दोनों साइड से इसे ओपन रखना पड़ेगा। दैट इज द केस, दिस इज नोन एज द ओपन सिस्टम। ये जो ओपन का गेट ओपन का कॉन्सेप्ट है, ये जो समझने के लिए है, ऐसे होता नहीं है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स इन बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। Now let's talk about some of the important terms which are widely used in the bioprocess engineering, which are steady state and the unsteady state. In steady state जो properties हैं system की, जैसे कि temperature, concentration, volume, mass, ये vary नहीं करती हैं with time. This process is known as the steady state. And in the unsteady state these properties vary with time. उसे हम unsteady state भी बोल सकते हैं और transient state भी बोल सकते हैं। Now, if we compare these important terms with the bioprocesses or the reactors like batch reactor, fed batch reactor and continuous reactor, we can tell that कौन सा reactor किस state के ऊपर depend करता है। In batch reactor हमने एक बार ही input दे दिया है and हम end में अपना product को remove करवाएंगे, तो उस केस के अंदर जो mass होता है वो increase करेगा, because हम remove नहीं करवा रहे। biomass and product दोनों की concentration increase हो रही है, right? टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा, इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा। pH भी, क्योंकि हम एसिड या फिर बेस ऐड नहीं कर सकते, तो वो इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। दिस इज द केस ऑफ द बैच रिएक्टर। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द सेमी बैच रिएक्टर और द फेड बैच रिएक्टर, इसके अंदर हम कॉन्टिन्यूसली ऐड करवा रहे हैं एंड रिमूव करवा रहे हैं एंड में, या फिर हम दूसरा केस ले सकते हैं कि हमने एक बार ही ऐड करवा दिया है, हम प्रोडक्ट को रिमूव करवा रहे हैं बार बार एट अ कांस्टेंट इंटरवल। सो उस केस के अंदर भी मास जो होगा वो इंक्रीज और डिक्रीज करता रहेगा। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी इंक्रीज और डिक्रीज होती रहेगी। एज वेल एज द केस ऑफ द टेम्परेचर, इट विल इंक्रीज और डिक्रीज, क्योंकि हम मेंटेन तो करवा नहीं पा रहे हैं कूलिंग जैकेट्स वगैरह के थ्रू। एंड पीएच भी इंक्रीज और डिक्रीज। अगर देखा जाए जो बैच एंड फेड बैच या फिर सेमी बैच प्रोसेसेस हैं, वो दोनों अनस्टेडी स्टेट की कंडीशंस फुलफिल करते हैं, राइट? तो ये दोनों तो होते हैं अनस्टेडी। नाउ इफ वी टॉक अबाउट दी कॉन्टिन्यूअस रिएक्टर, इन कॉन्टिन्यूअस रिएक्टर हम कॉन्टिन्यूअसली इनफ्लो भी करवाते हैं एंड कॉन्टिन्यूअसली हम आउटफ्लो भी करवाते हैं प्रोडक्ट का। तो अब इसके अंदर दो केसेस हो सकते हैं। हम मास को मेंटेन भी कर सकते हैं, लाइक सेम भी रख सकते हैं। सेम इज द केस विद द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अगर हम जितना ऐड करवा रहे हैं उतना ही हम रिमूव करवाएं, तो हमारे पास मास एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन सेम होगी, दैट इज कांस्टेंट होगी। टेम्परेचर हम मेंटेन कर सकते हैं। एसिड एंड बेस अगर हम ऐड करवा सकते हैं तो ये भी हमारा मेंटेन रह सकता है, कांस्टेंट रह सकता है। बट इट डिपेंड्स अपॉन अस। अगर हमने ज्यादा ऐड कर दिया एंड कम रिमूव करवा रहे हैं तो मास की कंसंट्रेशन सेम नहीं रहेगी। एज वेल एज प्रोडक्ट जितना बन रहा है हम उतना रिमूव अगर नहीं करवाए तो कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट भी सेम नहीं रहेगी। एंड हम अगर टेम्परेचर एंड पीएच मेंटेन ना करें तो वो दोनों भी सेम नहीं रहेंगे। तो जो कॉन्टिन्यूअस बायोरिएक्टर है वो दोनों चीजें परफॉर्म करता है, दैट इज इट शोज अस द अनस्टेडी स्टेट एज वेल एज द स्टेडी स्टेट। एंड इट इज ऑब्जर्व्ड दैट जो स्टेडी स्टेट होती है वो हमें मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी देती है। नाउ दिस स्लाइड स्टेट्स दैट the batch, fed batch and semi batch processes comes under the transient or the unsteady state, that is इनके अंदर जो properties हैं वो constant नहीं रहती हैं। and on the other hand continuous process हम उसके अंदर constant properties maintain करवा सकते हैं, तो it can be steady, but yes अगर हमने maintain नहीं करवाई तो वो transient की तरह भी act कर सकता है। एंड इट इज ऑल्सो ऑब्जर्व दैट जब रिएक्शन स्टार्ट होता है, चाहे वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ही क्यों ना हो,
स्टार्टिंग में कोई भी प्रोसेस स्टेडी नहीं हो सकता है. एवरी प्रोसेस विल एक्ट एज एन अनस्टेडी स्टेट. इट इज ऑफन सीन दैट आफ्टर स्टडिंग द स्टेडी स्टेट, students gets confused between the equilibrium and the steady state. What is equilibrium? Equilibrium is a state जहाँ पे हमारे reactants काउंटर बैलेंस हो जाते हैं, रिएक्शन स्टॉप करवाते हैं, उनके अंदर कोई भी नेट ड्राइविंग फोर्स ही नहीं बचता. वो सिस्टम एक इनर्ट बन जाता है या फिर स्टैटिक सिस्टम बन जाता है. इसके अंदर क्या होता है, दोनों रिएक्टेंट्स इक्विलिब्रेट कर जाते हैं एंड हमारे रिएक्शन को स्टॉप करवाने में हेल्प करते हैं. बट इन दिस स्टेडी स्टेट हमें बायो रिएक्टर रन करवाना है जिससे कि हमें मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी मिले. इसके अंदर हमारा रिएक्शन स्टॉप नहीं होता. सो दीज टू टर्म्स आर वेरी डिफरेंट विद ईच अदर. इन इक्विलिब्रियम इट इज ऑल्सो ऑब्जर्व दैट कंसंट्रेशन the components are held constant, but in the steady state कुछ ही components को constant रखा जाता है जैसे कि pH, temperature, mass, volume. And the other difference is that जो system के अंदर देखा गया that there is no net change in the whole system. हमारे system के अंदर concentration same रहती है, but in a bioreactor reactants हमेशा decrease होते हैं and products की concentration हमेशा increase होती है. So reactant and product की concentration change हो रही होती है. So these were the basic differences between the steady state and the equilibrium. I hope all of you have understood this topic very well. So now let's move towards this very simple question which states that which of the following types of the processes depends upon the steady state condition. I know सबको इसका आंसर पता होगा. नाउ मुझे जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए जिससे कि मुझे भी पता चल जाए दैट जो मैं समझाना चाह रही हूँ वो आप लोग को समझ आ भी रहा है या नहीं. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द मास बैलेंस. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज इसमें से गेट एज वेल एज डीबीटी जेआरएफ में क्वेश्चंस आते हैं. सो आज के लिए इतना ही. लेट्स कॉल इट अ डे. इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट. एंड इफ यू लाइक दिस कंटेंट एंड एंजॉय दिस वीडियो विद मी एंड गेन समथिंग न्यू देन डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो with your friends. It will motivate me to make more videos for you guys. If you have any doubt or any suggestion, you can direct message me on my Insta ID, that is @mohita_chug. I hope you'll all have a very great and a productive day ahead. Thank you so much.